सो अब हम चलते हैं अपना दूसरी किताब पे, जिसमें हम फ्रेश न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और बहुत सुंदर चैप्टर, इसका नाम ही इतना मस्त है, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। कैसे आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप चाहते हो, किस तरह से मिलते हैं हमें, है ना। ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो यस, वी हैव बांधवी हु इज रीडिंग फॉर अस Good फ्रॉम morning, मुंबई, आई ma'am. गेस। बांधवी, you're in Mumbai? Yes, ma'am. Yeah. So let's start reading. Okay. Chapter 8, How to Get the Results You Want. The principal reason for failure are lack of confidence and too much effort. Many people block answers to their prayers by failing to fully comprehend the workings of their subconscious mind. When you know how your mind functions, you gain a measure of confidence. You must remember whenever your subconscious mind accepts an idea, it immediately begins to execute it. It uses all its mighty resources to that end and mobilizes all the mental and spiritual laws of your deeper mind. This law is true for good and bad ideas. Consequently, if you use it negatively, it brings trouble, failure, and confusion. When you use it constructively, it brings guidance, freedom, and peace of mind. The right answer is inevitable. When your thoughts are positive, constructive, and loving, from the answer is inevitable when your thoughts are positive, constructive, and loving. From this is perfectly obvious that the only thing you have to do in order to overcome failure is to get your subconscious to accept your idea or request by feeling its reality now, and the law of your mind will do the rest. Turn over your request with faith and confidence, and your subconscious will take over and You lost her, so your subconscious will take over and answer for you. okay. So you will always fail to get results by trying to use mental coercion. Your subconscious mind does not respond to coercions, it responds to your faith or conscious mind acceptance. Your failure to get results may also arise from such statements as things are getting worse. I will never get an answer. I see no way out. It is hopeless. I don't know what to do. I am all mixed up. When you use such statements, you get no response or cooperation from your subconscious mind. Like a soldier marking time, you neither go forward nor backward. In other words, you don't get anywhere. If If you get a taxi and get half a dozen different directions to the driver, if you get a taxi and give half a dozen different directions to the driver in 5 minutes, he would become hopelessly confused and probably would refuse to take you anywhere. It is the same when working with your subconscious mind. There must be a clear cut idea in your mind. You must arrive at the definite decision that there is a way out, a solution to the vexing problem in sickness. Only the infinite intelligence within your subconscious knows the answer. When you come to that clear cut conclusion in your conscious mind, your mind is then made up, and according to your belief, is it done unto you. हाँ जी, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें बताया है कि आपकी प्रेयर कैसे आंसर होती है। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर किसी की प्रेयर आंसर नहीं हो रही है, उसके सिर्फ दो कारण होते हैं। एक तो उसमें बिलीफ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग यूज कर रहा है, मेंटल प्रेशर और कोएर्जन। कोएर्जन का मतलब होता है फोर्स,
बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है, मैं दिखा दूंगी, मैं ये बता दूंगी, मैं ये कर दूंगी, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। वाइब्रेशनली सब हो जाता है ना। इसके नेक्स्ट टॉपिक का नाम ही है इजी डज इट। तो इसलिए सिंपल, बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। जैसे कोई सिचुएशन अभी है ना, मे बी हेल्थ ब्रेक डाउन है, या मे बी मनी मनी का चैलेंज चल रहा है, तो आपको मेंटल क्वेश्चन, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, यू नो, आई कैन आस्क दिस पर्सन फॉर मनी, या वो वाली एफडी पड़ी है वो हम तोड़ लेते हैं, अच्छा और कहाँ से पैसा है, वहां से पैसा, ये सब करने की ये कोएर्जन कहलाता है ना। इसका मतलब है हमको ट्रस्ट नहीं है यूनिवर्स पे, हम क्रिएट कर सकते हैं ना पैसा किसी चीज के लिए भी। तो मेंटल कोएर्जन से कभी भी रिजल्ट नहीं आता है। वाइब्रेशनली चुपचाप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के आप उसमें या तो 100 बार लिखो दैट आई एम कॉन्स्टेंटली रिसीविंग मनी, और थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल माई वेल्थ नाउ, या जो भी करना है ना। आप जो इसमें वेल्थ के कितने सारे एफर्मेशन इन्होंने दिए, आई गिव थैंक्स फॉर माई मनी, फॉर माई वेल्थ, आई गिव थैंक्स फॉर माई वेल्थ। सिंपल सा सेंटेंस जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पिछले चैप्टर में दिया था, और उसको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जस्ट जाके आई गिव थैंक्स फॉर द मनी, or for all my money, my was there, for all my wealth. So I give thanks for all my wealth, I give thanks for all my wealth। आप रिपीटेडली 10 मिनट बोलते रहो अपने आप को। तो ये टेक्निक्स होती हैं। तो अपना वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ती है। जैसे इन्होंने इसमें बताया सेकेंड पैराग्राफ में, थिंक एज इफ इट्स ऑलरेडी डन एंड गिव थैंक्स फॉर इट, कि थैंक यू, ये चीज आपने मुझे दे दी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अभी है नहीं, थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी, थैंक यू फॉर माई 100% रिकवरी, थैंक यू फॉर माई मेराक्युलस रिकवरी। और ये बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है ना। कोएर्जन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एफडी तोड़ देती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वहां चली जाती हूँ, मैं ऐसे हो जाएगा, ये बोलूंगी तो ऐसा रिएक्शन होगा, वो बोलूंगी तो उसको मजा चखा लेंगे, ये सब कोएर्जन की चीजें होती हैं। यू हैव टू बी वेरी काम एंड पीसफुल इन योर हेड ऑल द टाइम एंड लिटरली बी दैट ब्लेसिंग फोर्स। बस एक ब्लेसिंग फोर्स बन के रहना होता है हमको जिंदगी में। उसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है, बाकी चीजें उसकी बाय प्रोडक्ट होती हैं। इफ यू आर अ ब्लेसिंग फोर्स इन दिस यूनिवर्स, as a byproduct you will receive abundance, good health, prosperity and everything that you desire. It is as simple as that, right? सो ये इन्होंने बताया है कि एक तो दिमाग अपना बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश मत करो, प्रेयर थेरेपी को यूज करो। प्रेयर थेरेपी का मतलब होता है गिव थैंक्स फॉर इट एज इफ इट्स ऑलरेडी डन, खत्म बात, वो जरूर आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। कृष्ण जी ने बोला था ना पहले, यही बोला था कि आपको क्या करना है, आप उस पर फोकस करो, और ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बिलीफ के साथ में यू विल डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव करोगे। अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि बिलीफ आपका है और दिमाग बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे, है ना। जैसे इसमें बड़े मजाकी तौर पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी का आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तो उन्होंने लिखा है कि अगर एक ड्राइवर आपने हायर किया और उस ड्राइवर को आप बोल रहे हो कि 5 जगह बताइए आपने कि कहाँ आपको जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वेरेवर, तो वो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा आप रहने दो, आप उतर जाओ मेरी गाड़ी से, आपको खुद ही नहीं पता आपको जाना कहाँ है। तो ये चीज बोली है, जैसे लिखा है ना, इफ यू गेट इनटू अ टैक्सी एंड गिव हाफ डजन डिफरेंट डायरेक्शंस टू द ड्राइवर इन 5 minutes, ही वुड बिकम होपलेसली कंफ्यूज्ड एंड रिफ्यूज टू टेक यू एनीवेयर। वो मना कर देगा कि मुझे आपको नहीं ले जाना। हाफ डजन डायरेक्शंस दिए हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, ये ऐसे कर लो, है ना। कोई भी ऐसे कंफ्यूजन के साथ नहीं रहना चाहता। तो वही कह रहे हैं, इस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा वो मत दो कि ठीक है पैसे चाहिए, मैं एफडी तुड़वा लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, उससे बोरो कर लेते हैं, पेरेंट्स से बोरो कर लेते हैं, वहां से ले आते हैं, यहाँ से ले आते हैं, वहां पे ये, इतना नहीं। यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शन दो। यूनिवर्स को मतलब सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी एनर्जी के रूप को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है ना। बिकॉज सबकॉन्शियस जो है अवचेतन मन, वो सुपर कॉन्शियसनेस जिनको हम परमात्मा बोलते हैं, वो उनसे कनेक्टेड रहता है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फोर्स हमारे आसपास है जिनको हम भगवान बोलते हैं, है ना। वहां से अपना पाइप उस रिजर्वॉयर से कनेक्ट करके रखो हमेशा। और उस रिजर्वॉयर से जब पता है कि ये टैप खोलेंगे तो पानी निकलेगा, तो ये थोड़ी सोचने की जरूरत है ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। एक वो लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। जब भी अगर मेरे लाइफ में भी कोई चैलेंज आता है तो मैं कभी किसी से मुंह भी नहीं खोलती, बात भी नहीं करती,
चुपचाप अपने ऑफिस से आके मैं कोई भी एक सेंटेंस पकड़ के, जो मेरा एफर्मेशन होता है, गिव थैंक्स फॉर दिस दिस दिस, मैं 100 टाइम्स लिखती हूँ और उसको लिखती रहती हूँ लगातार 10-15 दिन, जब तक कि मेरा वो एरिया लाइफ का ओपन अप नहीं हो जाता और मुझे स्ट्रांगली रिजल्ट्स नहीं दिखने शुरू हो जाते, है ना। यू डोंट नीड टू डिस्कस इट हियर एंड देयर, और बहुत अच्छे जोन में अपने आप को रखो। जितना ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे उतनी प्रॉब्लम को आप एनर्जी दे रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहां पे भी एनर्जी जा रही है, जहां पे भी अटेंशन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ जा रही है, यानी कि आप बहुत फोकस कर रहे हो वहां पे, वो चीज आपकी एम्पलीफाई होती है, वो बड़ी होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हमको ये बहुत माइंडफुल रहने की जरूरत है कि आप कहाँ पे अपनी एनर्जी किस तरफ केंद्रित कर रहे हो। वो बहुत एम्पलीफाई हो गया, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने लिखा है माइंडसेट की बात जब यहाँ पे की है, अगर लगातार आपका थॉट प्रोसेस और आपकी सेल्फ टॉक ऐसी होती है दैट आई विल नेवर गेट द आंसर, मैं तो इतना कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड, लेकिन मेरी थिंग्स वर्स होते जा रहे हैं, मुझे कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा है, मैं बहुत ही रिजाइन फील कर रही हूँ, होपलेस फील कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, आई एम सुपर कंफ्यूज्ड। अगर इस तरह की बातें हम करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ओके लेट मी गिव यू मोर ऑफ दिस, मैं आपको और देता हूँ ये, है ना। जैसे आई एम वेरी कंफ्यूज, वो कहेगा चलो लेट्स इंक्रीज द कंफ्यूजन। सबकॉन्शियस माइंड में ह्यूमर नहीं होता है और राइट एंड रॉन्ग का लॉजिक नहीं होता कुछ भी, वो कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, शब्दों और इमेजेस पे चलता है। अगर आपने अच्छी इमेज दी विजुअलाइजेशन में तो आपकी वो बड़ी हो जाएगी। अगर आपने कंफ्यूज्ड और बहुत ज्यादा वैसी वाली व्हाट डू आई डू, दिस इज नॉट वर्किंग, ये हो गया, मेरी उससे लड़ाई हो गई, मेरी बात नहीं हो रही, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड आपको और लड़ाई झगड़े वाले मौका देना शुरू कर देगा, बिकॉज आपके दिमाग में वही चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी सेल्फ वर्थ ही नहीं है, वो पर्सन मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो पर्सन मुझे प्यार नहीं जताता, तो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं लेट मी गिव यू मोर ऑफ दिस, और वो पर्सन आपसे और दूर जाता जाएगा। वाई? बिकॉज आपने वो उस एनर्जी में आप ड्वेल कर रहे हो, है ना। तो इसलिए हमेशा एंड गोल और सोल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ ध्यान रहना चाहिए। हाँ जी। Easy does it. A house owner once remonstrated with a furnace repairman for charging $200 for fixing the boiler. The mechanic said, I charged 5 cents for the missing bolt and $199.95 for knowing what was wrong. Similarly, your subconscious mind is the master mechanic, the all wise one who knows ways and means of healing any organ of your body as well as your affairs. Decree health, I'm sorry, decree health and your subconscious well establish it, but relaxation is the key. Easy does it. Do not be concerned with details and means, but know the end result. Get the feel of the happy solution to your problem, whether it is health, finances, or employment. Remember how you felt after you had recovered from a severe state of illness. Bear in mind that your feeling is the touchstone of all subconscious demonstrations. Your new idea must be felt subjectively in a finished state, not the future, but as coming about now. या सो वेरी क्लियरली यहाँ पे है इजी डज इट। सो इसमें लिखा हुआ है दिमाग यूज करने से कुछ नहीं होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मास्टर मैकेनिक है। मास्टर मैकेनिक आपकी जिंदगी के अफेयर्स के बारे में, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, बिजनेस, ट्रैवल्स, जो चीज चाहिए, जो आप डिक्री करोगे, जो आप बोलोगे थैंक यू फॉर माई वेल्थ, या थैंक यू फॉर माई रोबेस्ट हेल्थ, थैंक यू दैट आई एम 100% होल हील्ड कंप्लीट, थैंक यू दैट मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, वो चीज आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, बट रेपिटेशन और रिलैक्सेशन से। कभी भी जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है विच इज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में नहीं होता, है ना। जब परेशान हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, उससे कुछ नहीं होता। वी नीड टू बी सुपर काम एंड रिलैक्स्ड
राइट? रिलैक्सेशन के मोड में सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव और एब्जॉर्बिंग होता है, और उस टाइम अगर आप हेल्थ को डिक्री करोगे तो हेल्थ आपको मिलेगी, है ना? सो इसीलिए लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी एज वेल एज ऑल योर अफेयर्स, अगर हीलिंग ऑफ द ऑर्गन चाहिए तो हीलिंग ऑफ द ऑर्गन हो जाएगी, हीलिंग ऑफ द होल बॉडी चाहिए वो हो जाएगा, एज वेल एज योर अफेयर्स, मतलब योर अफेयर्स एज इन योर फाइनेंसेस, योर बिजनेस, योर रिलेशनशिप, जहां पे भी आपको जादू लेके आना है, अगर लगातार रेपिटेशन से वो जादू आ जाता है रिलैक्स मोड में। फाइट एंड फ्लाइट अगर मोड में रहेंगे पूरे टाइम, ये कर लो वो कर लो, ऐसा ये गलत है, ये वो, परेशान होना, वरी होना, किसी से एनवियस होना, किसी का गुस्सा किसी पे निकालना, इसका मतलब है आप बहुत अनस्टेबल कैरेक्टर हो, है ना? दिमाग बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल माइंडसेट में कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती है, उसके लिए बहुत रिलैक्स माइंडसेट चाहिए होता है। कुछ भी टर्बुलेंस है तब भी आपको ब्लेस, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, इरिटेटेड हुए किसी के बिहेवियर से, किसी के एक्शन से, या कुछ इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, जेलस हुए, या आपने उसको वर्बलाइज किया किसी और को बोल के कि ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे हो रहा है, यू लॉस्ट इट देयर। ओके, यही नहीं, अगर आप +100 पे भी थे तो आप -100 पे चले जाओगे। अब आपको मेहनत करके, स्विम करके 0 लेवल तक आना पड़ेगा, उसके बाद आप 100 तक बिल्ड करो। तो एनर्जी बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एनर्जी खोने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो इसीलिए अपना माइंडसेट उस तरह से बना के रखना वेर यूर काम एंड रिलैक्स, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, परेशान, आप बहुत ज्यादा वो होके, गुस्सा करके, इरिटेटेड होके देख लिया, डज इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क। इट विल नॉट वर्क बिकॉज इट विल गिव यू मोर इंसिडेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस वेर यू विल फील वेरी इरिटेटेड, है ना? वो आप ही तो अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में सारा ये सब, फिर उस पे ब्लेम देंगे, तुमने ऐसे किया, वो हमेशा मेरा मूड खराब करता है। किसने अट्रैक्ट किया था? हमने किया था ना, क्योंकि हम किसी और चीज से इरिटेटेड थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ओके हैव मोर। तो ये हैव मोर वाला प्रिंसिपल पूरे दिन चलता है, चाहे पॉजिटिव के लिए हो चाहे नेगेटिव के लिए हो। हैव मोर, आपको गुस्सा आया, वो कहेगा हैव मोर। अब आप सारी ऐसी सिचुएशन से पूरे ड्राउन हो जाएंगे जो जो आपको बहुत गुस्सा दिलाएगी। लेकिन अगर आपने बोला दैट, उसकी अच्छाइयां देखी, दैट थैंक यू सो मच, दिस इज डन लाइक दैट एंड दिस फॉर दिस एंड फॉर दिस एंड दिस, यूनिवर्स उसके लिए भी कहता है हैव मोर। ओके, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, दैट गेट दैट फील ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम, ताकि आप वही चीजें, सारी इससे ही मिलती जुलती चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू करो। जैसे हम कभी भी ऑर्डर करते हैं, है ना? कभी आप नायका लक्स पे गए या नायका के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, तो जैसे अभी आज सुबह सुबह मैंने एक सन ब्लॉक ऑर्डर किया, तो उसमें आउट ऑफ स्टॉक था, तो फटाफट उसमें लिखा हो जाता है ना, मोर मोर लाइक दीज लिखा हुआ आता है, और आपको खूब सारे उसमें नीचे दिखाना लग जाता है कि मोर प्रोडक्ट्स लाइक दीज। उसी तरह से यूनिवर्स वर्क करता है कि हैव मोर ऑफ दीज। जैसे कोई ड्रेस लिए तो हैव मोर ऑफ दीज ड्रेसेस, अगर आपने डेनिम्स खरीदी है तो खूब सारे डेनिम आ जाएंगे अलग अलग ब्रांड के, कि मोर ऑफ दीज, मोर ऑफ दीज यू मे लाइक, ये लिखा हुआ आता है। तो उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है, मोर ऑफ दीज यू मे लाइक। अच्छा, आप गुस्सा हुए, ओके लेट मी गिव यू मोर ऑफ दीज, बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज वाई, इसीलिए अपने आप को शांत रखना, इजी डेजर्ट का मतलब यही होता है कि अपने आप को शांत रखना और अच्छी फीलिंग फ्रीक्वेंसी में रखने की कोशिश करना, शब्दों का चयन करके। चूज द वर्ड्स दैट आर हाई पावर वर्ड्स व्हेन यू आर फीलिंग लो। उन शब्दों का चयन करो जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, जैसे आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो एक्साइटेड, दिस मेक्स मी सो हैप्पी, वाओ दिस इज रियली वंडरफुल, इस तरह के वर्ड्स यूज करके, है ना? या उन लोगों को ब्लेस करो जो आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, दैट वे। So, yes, we'll only read so much today. Thank you, Bandhavi, so much for reading.